Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel KK Avasthi Edu Hub. In today's session, we are going to do competency-based questions from chapter 1. If you are new on this channel, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो because we are running a competency-based question series strictly for ICSC 2025 board exams. We'll be covering all the chapters and different levels of competency-based questions in both physics and maths. We have already completed chapter number 12, which was modern physics. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, यू कैन चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक इज देयर, और यू कैन चेक द सजेस्टेड वीडियोस. आज हम फोर्स के क्वेश्चंस करेंगे एंड ट्रस्ट मी, द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे आर एक्सीलेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. This is the first question. The net force acting on a body is zero. We'll be analyzing each and every aspect of the question. Question बोल रहा है that the net force acting on a body is zero, right? Force आपका जीरो है और बॉडी रेस्ट पे है. अगर बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है. अच्छा, नेट फोर्स भी जीरो है. द नेट फोर्स इज ऑल्सो जीरो. सो देर इज नो चांस ऑफ बॉडी टू बी इन एनी काइंड ऑफ मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन हो ही नहीं सकता, राइट? सो द फर्स्ट ऑप्शन सेज मे हैव ट्रांसलेशनल मोशन. नो, द बॉडी कैन नॉट हैव ट्रांसलेशनल मोशन. मे हैव रोटेशनल मोशन. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देखिए, रोटेशनल मोशन के लिए यू नीड टॉर्क, ओके? एंड अगर दो इक्वल फोर्सेस भी लग रहे हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है तो भी वहां पर टॉर्क लगने लगता है. जैसे मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 10 न्यूटन. अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग हियर, so 10 newton is acting upwards, 10 newton is acting downwards. The net force is zero, the body is in the rest, but this combination will create a couple due to which a turning effect will be created and the body will be rotated, right? तो अगर net force zero है तो लीनियर मोशन तो नहीं हो सकता, लेकिन रोटेशनल मोशन हो सकता है. किस केस में रोटेशनल मोशन नहीं होगा? अगर नेट टॉर्क जीरो है. ऑल द स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस पॉइंट. फॉर रोटेशनल मोशन टू सीज, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क बोथ हैव टू बी जीरो. But in case of linear motion, if the net force is zero, the body will not change its position, right? So B is the correct option. Second, uniform circular motion has, see, let us draw the diagram. Let us assume that the body is moving in the clockwise direction. At any point, this is the direction of the velocity, and we know that in a uniform circular motion, the word uniform stands for speed. It never stands for velocity. Why? Because velocity is a vector quantity. It depends on both magnitude and direction. And in a uniform circular motion, the direction of the velocity keeps on changing at every point. At every point, the direction of the velocity is different. So you cannot say that the velocity is constant. So speed is constant, but the velocity, being a vector quantity, is always variable. So I guess A is the correct option, right? बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी. वेलोसिटी हमेशा बदलेगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The diagram given below shows a wheel of diameter 40 centimeter. Okay, you are given the diameter, that means this is the radius and this is 20 centimeter. Okay, on a wall capable of rotating around its center O. This is the axis about which the rotation can take place. If the wheel rotates in anti-clockwise direction, now anti-clockwise direction means wheel ऐसे rotate कर रहा है. अगर wheel ऐसे rotate कर रहा है, इसका मतलब this force is creating a greater moment than this force. Yes or no? जिधर net torque या net moment का direction होगा, the body will be moving only in that direction. Clearly, if the body is moving in the anti-clockwise direction, so this x will have a greater moment compared to 100 GA. Now let's find the moments about this point O, right? So the moment by x will be x into OP, right? And by this 100 GF will be 100 into 20. You don't know the length of OP, and actually it is not required also, right? Let us make
x as a subject, x is, in fact, x is greater. Let us use a greater sign because anti-clockwise movement is given. It's given that the body is moving in anti-clockwise direction. It is greater than 100 into 20 divided by OP. Now tell me, आप फिगर देख के 100% श्योर हो that the value of OP is less than 20. OP का वैल्यू 20 से तो कम ही है because 20 is the radius, right? तो अगर OP का वैल्यू, if OP is less than 20, that means ये वाला वैल्यू 100% greater than 1 है. Yes, this value is 100% greater than 1, and if this value is 100% greater than 1, x has to be greater than 100 GF. So which option is correct? A option is correct. I hope समझ में आ गया है, right? We have a lot of questions to do. Let's move on to the next one. A uniform meter rule balances horizontally on a knife edge at 29. This is the balance point when a weight of 20 GF is suspended from one end. The weight of the half meter rule is. देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि वेट को किधर हैंग करें. ठीक है ना. अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रहता है अगर मैं फल्क्रम को 29 पे रखता हूं. दिस इज द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, राइट. लेकिन बॉडी का वेट कहां लाई करेगा? द वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज लाइज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इट इज अ हाफ मीटर रॉड, सो यहां पर बॉडी का वेट लाई करेगा. दिस इज द 25 सेंटीमीटर मार्क. यहां पर बॉडी का वेट लाई करेगा. नाउ दिस बॉडी वेट विल क्रिएट एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द फल्क्रम. अगर आपको रॉड को हॉरिजॉन्टल करना है, देन यू हैव टू हैंग दिस 20 GF ऑन द राइट हैंड साइड, राइट. आप इसको यहां पर हैंग नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि फल्क्रम के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है. अगर आप 20 GF को यहां हैंग कर दोगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर देगा. अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर देंगे, द रॉड कैन नॉट रिमेन हॉरिजॉन्टल, राइट. तो 20 GF हम यहां पर हैंग करेंगे. ओके, कहां हैंग करेंगे ये ऑब्वियस है, अभी आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे. देखिए, दिस इज 29 and this is 50. So what is this distance? This distance is 50 minus 29, that is 21. So how will you form? W into, this is 29, this is 25, so this is 4, right? So W into 4 will be equal to 20 into 50 minus 29 is 21. So W is equal to 105 GF. This is the correct option, right? I hope समझ में आ गया होगा. ऐसा क्वेश्चन आपके सेलेना में भी है. Next, the diagram given below shows a uniform meter rule of weight W. See, it's a uniform meter rule, so weight has to act at this point, right? No second thoughts about this. This is the position of the fulcrum, and to keep the rod horizontal, we are applying an effort E at the 90 centimeter point, and we have to mark the correct statement. सबसे पहली चीज, this is 60, this is 50, so this has to be 10, right? This has to be 10. Obvious है. This is 60 centimeter, this is 50, so 60 minus 5, this is 10, this is 90, this is 60, so this is 90 minus 60, that is 30, right? This is 30. Clear है? It's very simple. आपने निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो जरा निकाल के देखते हैं. W into 10 एक तरफ निकालते हैं, एक तरफ निकालते हैं E into 30, राइट. तो यहां से आपको दिख रहा है W is equal to 3E. Obviously W is greater than E, right? Obviously W is greater than E, तभी ये पॉसिबल है. और अदरवाइज आप वैसे भी देखो, जो डिस्टेंस कम है भाई, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज R क्रॉस F. जो डिस्टेंस कम है उधर का फोर्स तो ज्यादा होना ही चाहिए, अदरवाइज बॉडी हॉरिजॉन्टल कैसे रहेगी? इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल ही नहीं है, इजंट इट? तो आप बिना सॉल्व किए भी यू कैन डिड्यूस. नेक्स्ट, द आयरन बार ऑफ अ बिल्डिंग इज 3, द आयरन डोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड. एक आयरन डोर बना लेते हैं.
and let it be 3 meter broad. Okay, it can be opened by applying a force of 100 Newton normally at the middle. अगर आप मिडिल पर एक फोर्स लगाते हो कितना 100 न्यूटन का, तो आप डोर को ओपन कर सकते हो. इफ यू आर ओपनिंग द डोर दैट मींस आप या तो इस एक्सिस के अबाउट डोर को ओपन कर रहे हो या तो इस एक्सिस के अबाउट ओपन कर रहे हो. ऑब्वियस है. इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स एट द मिडिल, if this is the hinged part, then we can assume that the door is opened along the direction of the right arm. ठीक है ना. इस केस में what will be the torque? Torque is perpendicular distance. What is the perpendicular distance? It is 3 meter broad. The force is applied at the middle point, so distance will be 1.5. And how much force is applied? 100. So what will be the value of torque? The value of torque will be 150 Newton meter. Now the torque always remains constant. याद रखेंगे, for a given geometrical arrangement you cannot change the torque. The torque has to be fixed. Once the arrangement is set, the torque is constant. Now the question is saying what will be the least force required to open the door. If you want to open the door by applying minimum force, then that force has to be applied across any of its extreme ends. अगर आप एक्सट्रीम एंड पे फोर्स लगाओगे तभी डोर मिनिमम फोर्स से ओपन हो सकता है. आई गेस बात समझ में आ रही है, राइट? तो टॉर्क कैन नेवर चेंज. टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. यस और नो? तो जब आप आर, अच्छा, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. Let us assume that you are opening the door across this axis. When you are opening the force across this axis, then it means that you are applying the force on this arm. If you are applying the force on this arm, what is the value of R? The value of R is actually the broader arm of the door. And what is F? F is unknown. What is torque? Torque is 150. What will be the value of F? F will be 50 newtons. So this is the minimum force that can be used to open the door. A very basic question and a good question, right? Next, the diagram given below shows the balanced position of a meter rule. देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपल ट्रिक है जस्ट आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम. द फल्क्रम इज एट 40 सेंटीमीटर मार्क बट द स्केल इज हॉरिजॉन्टल. इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, मान लेते हैं इसका वेट W1 है एंड ये वाला जो पार्ट है इसका वेट W2 है, राइट? R1 is less than R2. आप देखिए ये वाला लेंथ इज 40, ये वाला लेंथ इज 60. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है W1 has to be greater than W2. Why? Because torque is same. Torque is same मतलब R1 W1 is equal to R2 W2, right? Now R2 upon R1 will be W1 upon W2. Since R2 is greater than R1, so W1 has to be greater than W2. इसका मतलब रॉड का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो ज्यादा भारी है, तभी तो कम डिस्टेंस पे बैलेंस हुआ जा रहा है. क्वेश्चन कह रहा है which of the following diagrams shows the correct position of the scale when it is supported at the center. अब आपने इसको, इस फल्क्रम को सेंटर पे ले आया. सेंटर पे ले आया मतलब you have moved the fulcrum to this point. Now you know the left hand side is heavier, so what will happen? The left hand side will bend, so A will be the correct option. Yes, very simple. I hope बात clear है सभी लोगों को. It's very basic, right? Let's move on to the next one. Okay, if the center of gravity of a meter scale of mass 80 grams, now see the mass is 80 grams, it's given. M is equal to 80 grams and it must be acting at 50 centimeter mark. Yes or no? यहाँ कहीं act कर रहा होगा. If the center of gravity of a meter lies at 45 centimeter mark. Now see, question में बोल दिया है कि center of gravity 45 centimeter पे लाई कर रही है. तो center of gravity वो point है जहां पर body का mass लाई करता है. इसका मतलब body का mass कहाँ लाई कर रहा है? The mass of the body is lying at the 45 centimeter mark. Then which of the following diagrams will show the balanced position of the scale? Question में आपसे पूछ रहा है कि balanced position क्या होगी. अच्छा, fulcrum कहाँ पे है? 60 पे है, right? The position of the fulcrum is 60, that is fixed, right? Weight कितना है? 80. Weight कहाँ पे है?
45 पे एक्ट कर रहा है, वेट इज एक्टिंग एट 45. तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वेट एंड this weight arm? Weight arm will be 60 minus 45, that is 15. What is the value of the weight? The value of weight is 80. That means 80 into 15 should be equal to, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक चीज कॉमन है, आप देख रहे हो कोई भी वेट हो एक्सट्रीम पॉइंट पर हैंग हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस इज फिक्स 40. कौन सा वेट है? वी डोंट नो, लेट अस अज्यूम इट इज x. 42 जा 80, x का वैल्यू आ जाएगा 30 gf. तो आप ऑप्शन देख के बताओ क्या सी ऑप्शन सही नहीं है? सी ऑप्शन में ही 30 gf दिया हुआ है. अभी देखो बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि पूछ क्या रहा है, राइट? आप I have seen over the years the students they keep on solving each and every option. There is no point solving each and every option, you will lose time in it. ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, देखना है कि बॉडी का वेट कहाँ लाई कर रहा है, बॉडी का वेट जहां लाई कर रहा है वहां से फलक्रम का डिस्टेंस क्या है. अगर आपको ये पता चल गया तो यू नो द वेट आर्म. यहां पर बॉडी का वेट 45 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा था, तो आपने फलक्रम से 45 माइनस करके वेट आर्म निकाल लिया. अब आपने कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू कंजर्व द मोमेंट, राइट? आपने मोमेंट्स बैलेंस कर दिए एंड यू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यूज, राइट? चलो, two forces each of magnitude 4 newton act vertically upwards and downwards at the two extreme ends, itna. The moment of couple is any one force into perpendicular distance, that is 4 newton meter. Now we have to select the correct option. No, सही है, no, सही है. 3 and 5 are correct. C is the correct option. I don't think इसको बताने के लिए we need to invest time. डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन अलग फ्रेम कर दिया है. नेक्स्ट, एन ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट इज पिवटेड एट पॉइंट O एज शोन बिलो, राइट? थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट. ये है आपका ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज द पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट इज पिवटेड. At which of the following points should the force F be applied to produce a positive moment of force? सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव, राइट? एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव. नाउ यू हैव टू सी कि आप एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहां कहां लगा सकते हो जिससे आपका बॉडी एट विच ऑफ द point should the force F be applied to produce a positive moment of force? पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब आप ऐसा मोमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है? लेकिन बेटा फोर्स का डायरेक्शन तो गिवन है, फोर्स ऐसा है, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फोर्स. इफ यू अप्लाई दिस फोर्स एट दिस पॉइंट, ऐसा क्रिएट हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड. इफ यू अप्लाइड द फोर्स एट दिस पॉइंट, अगेन सी this is pivoted point, this is the force, this is the perpendicular distance, this is the force and this is the perpendicular distance. Let us assume that the perpendicular distance is 0. अगर मैं ये डायग्राम हटा दूं, ये राइट, लेट, अगर बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो यू विल नोटिस नो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉट 0. देखिए, आपका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो पिवटेड पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. आपका जो क्यू पॉइंट है वो ऊपर है. अगर वो पॉइंट इस पिवटेड पॉइंट से ऊपर है तो ये वही इफेक्ट क्रिएट करेगा जो पी क्रिएट कर रहा है, राइट? क्लॉकवाइज, राइट? अगर आप आर की बात करो, आपने फोर्स यहां पर लगाया, this is your line of action, this is the perpendicular distance, indeed it will create a anti-clockwise movement, right? So correct option has to be R. It's a good competency based question without direct application. You just have to think a bit and then draw any conclusion. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. चलो नेक्स्ट. Uzma balanced a mop on top of a wooden wedge at point G. Okay, this is the balance point as shown in the figure. She cut the mop at G into two parts.
अच्छा, सिंस इट वाज बैलेंस्ड, इसका मतलब ये लॉन्गर आर्म है, ये लॉन्गर आर्म है, इसका वेट W1 कर लो, ये शॉर्टर आर्म है, दिस इज R1, दिस इज R2, इसका वेट W1 कर लो, इसका वेट W2 कर लो। आपको क्लियरली दिख रहा है R1 इज ग्रेटर देन R2, राइट? R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका मतलब W2 विल बी ग्रेटर देन W1। भाई कम डिस्टेंस पर भी अगर बैलेंस हो रहा है तो W2 का वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, so you have to, which of the following statements is likely to be true? The part of the mop with the brush will weigh more than the part of the mop without the brush. Exactly, W2 is heavier than W1, that is why at a shorter length you are able to balance it, right? Clear? Next, an object center of gravity is a point at or near the object through which its entire weight can be assumed to pass. An object is stable if the vertical line drawn from its center of gravity passes through its base. Okay, right? Sneha places a wooden toy in 3 different positions in her cupboard as shown. In which of the 3 positions is the toy likely to tip over? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान हमें देना है। स्टेबिलिटी की पोजीशन वो होती है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बेस से क्रॉस करे। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बेस से क्रॉस नहीं करता तो प्रोबेबिलिटी है कि बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, द बॉडी विल टॉपल। तो अगर पहला डायग्राम देखोगे तो 100% बॉडी के बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रॉस कर रहा है, राइट? एंड दे आर सेइंग द टॉय लाइकली टू टिप ओवर। किस केस में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो गिर जाए, मतलब इट कैनॉट स्टैंड स्टिल? जरा सेकेंड डायग्राम देखो। सेकेंड डायग्राम के केस में पहले मैं आपको बेस बता दूं। इस ज्योमेट्रिकल फिगर में ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है, दिस इज द बेस। नाउ इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, वेरी क्रूशियल थिंग। आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक वर्टिकल लाइन डालोगे, एक वर्टिकल लाइन डालोगे। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये वर्टिकल लाइन क्रॉस तो कर रहा है बेस को, राइट? इट्स अ वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। एट सेवरल प्लेसेस यू विल फाइंड कि भाई यहां पर टॉपल करेगा। देखिए मैं आपको वो भी समझाता हूं। देखिए यहां पे तो 100% टॉपल करेगा, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। यहां तो 100% टॉपल करेगा बिकॉज द वर्टिकल लाइन इज नॉट पासिंग फ्रॉम द बेस। तो आर तो टॉपल कर ही रहा है, दिस इज श्योर शॉट टॉपलिंग। द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज पोजिशन क्यू। क्यू पर टॉपल करेगा कि नहीं करेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। P is out of question, all PQR is out of question. There are only 2 probable options that can be correct. अब टेक्निकली मैं आपको एक चीज समझाता हूं, फिर आप खुद कंक्लूजन ड्रॉ करना। देखो, जब आप एक कोन को अपराइट रखते हो, राइट, और आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल लाइन खींचते हो, अब आप उल्टा नहीं रख सकते कोन को, कोन टॉपल करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? ये बेस बहुत पतला हो जाता है, बहुत पतला, इतना थिन होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको बैलेंस ही नहीं कर पाता। मतलब इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टचिंग विद द सरफेस ऑन विच द कोन इज स्टैंडिंग। इस डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप वीडियो को पॉज करके इसको जूम करोगे तो आपको जो ये जो कॉर्क लगा हुआ है कंटेनर के ऊपर, इस कॉर्क की थोड़ी सी विड्थ दी हुई है। आप समझ रहे हो बात को? अगर मैं ये थोड़ी सी विड्थ कंसीडर कर लूं उस केस में, तो वर्टिकल लाइन बेस को टच कर रही है और कंसिडरेबली टच कर रही है। मतलब इतना तो बेस स्ट्रांग नहीं है जैसा पी पॉइंट पे था, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर टॉपल करेगा। आप खुद भी देखो, ये मेरे पास एक वाटर बॉटल है, मैं इस वाटर बॉटल को ऐसे रोक सकता हूं, आई कैन मेक इट स्टेबल। ऐसे तो वाटर बॉटल रुकेगी ही रुकेगी, लेकिन ऐसे भी रुक सकती है। लेकिन अगर मैं ये बेस बिल्कुल पतला कर दूं तब तो 100% नहीं रुकेगी, या मैं इस वाटर बॉटल को ऐसे रोकना चाहूं तो 100% नहीं रुकेगी। तो यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट हम इसको देंगे। अकॉर्डिंग टू मी ओनली आर इज द करेक्ट ऑप्शन, बट द क्वेश्चन इज डिबेटेबल, राइट? टेक्निकली स्पीकिंग आर ही होना चाहिए, बट सॉल्यूशन में
अ पर्टिकुलर एजुकेटर कैन अज्यूम कि भाई ये बेस तो बहुत कम है। आप कोन के बेस से इसके बेस को कंपेयर नहीं कर रहे हो। कोन का जो टचिंग पॉइंट है, द एपेक्स ऑफ द कोन इज वेरी पॉइंटेड, द टचिंग पॉइंट इज वेरी स्मॉल, बट यहां पर ऐसा नहीं है। तो आइडियली बी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन एंड ओनली आर शुड टॉपल, राइट। अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी सजेशंस, प्लीज कमेंट करो वीडियो में, लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force F is applied to a rod pivoted at point P as shown in the image। ये थोड़ा 4 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है, चलो कर लेते हैं। What effect is applying the force likely to have on the rod? What effect is applying the force likely to, very bad English, what effect is applying the force like, obviously torque ही होगा, moment of force ही होगा। Write the expression for calculating the moment of force। अभी देखिए ये pivoted point है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, तो टाउ का वैल्यू हो जाएगा d क्रॉस f। अब फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो पहली बार चैनल पे आए हैं और आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है, या आपने अभी तक ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज नहीं चेक की है, वी हैव अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ICSE स्टूडेंट्स। just check that test series, it's very affordable, some 1200 rupees, and it's valid for say 10 months, right। आप जब भी लोगे 10 months तक valid होगी। you can give each and every test any number of times and there are complete solutions for every question। we have a recorded course as well, जहां पर more than 100 lectures हैं recorded with some super amazing questions, that is also at a very affordable rate। कुछ lectures free हैं, आप check कर सकते हो, right। What is the SI unit of moment of force? It's Newton into meter। Can the effect mentioned in A be obtained if the force F is applied along the line PQ? No, you cannot create torque if the force is applied along PQ। Why? Because the value of R will be 0, the perpendicular distance will be 0, so you cannot create a rotating effect, right। Next, from the given figure state whether the rod will rotate clockwise। Let's check। ये देखिए, ये आपको पिवटेड पॉइंट दे रखा है, तो इसके अबाउट आपको चेक करना है। 3 न्यूटन मोमेंट इधर क्रिएट करेगा तो 3 इंटू 1, ये वाला 2 न्यूटन इधर क्रिएट करेगा तो प्लस 2 इंटू 3, ये इधर क्रिएट करेगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, दिस इज 3 प्लस 6 इज 9, दिस इज ऑल्सो 9। So the body will remain in rotational equilibrium, the body will not change its position। Am I very clear, right? Chalo, the weight of an object lies at the center of gravity, easy question। A body is acted upon by two unequal forces and opposite forces along different line of action। एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं। द बॉडी विल हैव बोथ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, राइट। बॉडी लीनियर भी जाएगी और घूमेगी भी। देखिए F1 और F2 इक्वल नहीं है, तो जिस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा, मान लीजिए F1 इज ग्रेटर देन F2, तो एक नेट टॉर्क क्रिएट हो जाएगा जो बॉडी को घुमाएगा। लेकिन F1 इज ग्रेटर देन F2, तो ये बॉडी आगे भी जाएगी, राइट। तो बॉडी आगे भी जाएगी और घूमेगी भी। सो आई गेस बोथ A and B आर करेक्ट। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर टेकन फ्रॉम द ISC ने, काउंसिल ने जो क्वेश्चंस दिए थे। आई विल हैव अ सेपरेट सेशन फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने फोर्स से रिलेटेड जो है वो यहां पर लिए हुए हैं, लेट मी एक्सप्लेन। The diagram given below shows a force F 40 Newton acting on a rod AB pivoted at A in different directions। You have to identify the correct statement। P and S have opposite moments। P, this is P, this is S। No, the direction will be same। The magnitude of the moment of force is maximum in R। No, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये पिवटेड पॉइंट है। कुछ केसेस में फोर्स यहां लग रहा है, कुछ केसेस में आपको एक ऐसा ऑब्लिक सा डायरेक्शन दिया है। अब आप खुद सोच के मेरे को बताओ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया, तो जब आप पिवटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे, मान लीजिए ये R1 है
और इनिशियल केस में आपकी इसको R2 कर लो, इनिशियल केस में आपकी डिस्टेंस R1 है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो ये वाला, जब कभी भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, आप मुझे बताओ किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज से बड़ी कोई साइड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये साइड हमेशा परपेंडिकुलर ही तो होगी, और ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है। तो अगर आप फोर्स को ऑब्लिक कर दोगे बेटा, तो वो जो आर है वो कभी मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ये कभी भी ऐसा टॉर्क क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम कैसा होगा? P और Q में, राइट? नेक्स्ट, in the diagram given below, 4 cones are depicted, each with a height of 12 centimeter. The position of the center of gravity is indicated by the dots. यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है. Which of these cones is a completely solid? Complete solid cone. इसका मतलब आप समझ रहे हो? सबसे पहली चीज तो देखो, आपको हाइट टॉप से दे रखी है, राइट? द हाइट इज गिवन फ्रॉम द टॉप. तो ये सॉलिड कोन है, हॉलो कोन तो है नहीं. दिस इज अ सॉलिड कोन, राइट? सॉलिड कोन के लिए व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन? h/4 होता है बेस से एंड 3h/4 होता है वर्टेक्स से. तो आपको हाइट दे रखा है 12, तो 3/4 into 12, this will give you 9 centimeters. So 9 centimeter is the correct option. Next, a metal ball is whirled inside a ring placed on a table as shown in the diagram P. The diagram Q shows the motion of the ball after the ring is lifted. अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जब आपका बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, अब यहां पर एरो आपको बना के दे दिया ऐसा, मतलब सर्कुलर मोशन ऐसा है, तो हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है दैट इज द टेंजेंट, राइट? जैसे आप एक थ्रेड लो, उस थ्रेड में आप एक पीस ऑफ स्टोन बांध लो और स्टोन को घुमाओ. जैसे ही थ्रेड टूटेगा, स्टोन टेंजेंशियली मूव करेगा, राइट? अब आप खुद सोच के देखो, अगर आपको ये बोल रहा है कि क्यू ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब इस सर्किल पे ये वो पोजीशन है जहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है. अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब आपका जो बॉल है वो यहां होना चाहिए. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बात समझ में आ रही है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? चलो नेक्स्ट. Anu and Amy purchased ice cream in plastic balls and cones, okay, respectively, during their outing at the science fair. After consuming their ice creams, Anu stated that regardless of whether they are filled with ice cream or empty, the center of gravity of the object will remain unchanged. Wrong. See, let me tell you a very important point. Center of gravity and center of mass, थोड़ा सा हाई लेवल है, 10th से थोड़ा सा ऊपर है, बट फोकस करना. दो चीजें होती है बेटा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का वेट लाई करता है. सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का मास लाई करता है, ठीक है? लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, मतलब अगर जी कांस्टेंट है, तो यार जी तो कांस्टेंट ही लेंगे अर्थ में. अगर जी कांस्टेंट है तो दोनों एक ही हो जाते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास आर सेम इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. और ये दोनों ही चीजें मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती हैं. ओके, मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? बात समझ में आई? ओके, तो अनु वाज सेइंग दैट regardless of whether they were filled with ice cream or empty, the center of gravity of the object would remain unchanged. No, it will change. When the mass is there within the cone, within the ball, you know, the mass is different. When the ice cream is present, the mass is different. Okay, जब mass different है तो center of gravity भी change होगा. Why का reason समझ में आ गया? Mass distribution is the reason for this. Okay, next. The picture below shows a boy climbing a rope ladder. A very good, very good question. I have seen the answer given by the council. It's very
एम्बिगियस आंसर। बहुत से बच्चों को सोल्यूशन देख के भी, जो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनका सोल्यूशन भी है, बट आपको सोल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आएगा अगर ठीक से समझाया ना जाए। स्पेशली ये क्वेश्चन देखिएगा, द पिक्चर below shows a boy climbing a rope ladder hanging from the branch of a tree. The boy in the picture finds it difficult to climb the ladder as it turns about the axis. देखो ऐसे समझो, यहां से बॉय ने लैडर को पकड़ा है, तो ये मेरी एक्सिस हो गई। ओके, जब बंदा चढ़ रहा है इस पर, तो बॉडी इसी एक्सिस के अबाउट मूव करने लगेगी। भाई दिस इज द फिक्स पार्ट। आप ऐसे ऐसे गोल गोल करके चढ़ रहे हो, यू हैव नॉट स्ट्रेच्ड योर बॉडी। तो हो क्या रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम हियर इज, पहले लैडर बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका लैडर है, ओके, दिस इज योर लैडर। ये हो गया लैडर का सेंटर ऑफ मास, राइट, और ये आपकी एक्सिस है, तो ये हो गई आपकी लैडर की एक्सिस। आपकी बॉडी कैसी है? आपकी बॉडी अभी ऐसे है। जब आपकी बॉडी ऐसे है तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहां, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ, आपका सेंटर ऑफ मास या आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या इस एक्सिस के अबाउट एक टॉर्क क्रिएट नहीं कर रहा? आप बताइए। बिल्कुल कर रहा है सर, क्यों नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि आप ऐसे 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 मुड़ के खड़े हुए थे, राइट, तो टॉर्क तो क्रिएट हो रहा है। अगर टॉर्क क्रिएट हो रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट आपकी रस्सी झूलने लगेगी, इट विल स्टार्ट स्विंगिंग। क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज, तो पहला पार्ट का आंसर समझ में आ गया, टॉर्क आ जाएगा। हाउ डज keeping the body parallel to the ladder makes climbing easier? Now see a very good question. ये बनाया आपने लैडर, ठीक है, दिस इज अ लैडर। पहले आप कैसे थे? ऐसे टेढ़े मेढ़े खड़े थे। अब की बार आपने क्या किया? आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, जितना आप स्ट्रेच कर सकते थे, ठीक। अब ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट, ये आपका वेट, ये है बेटा डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या आर की वैल्यू डिक्रीज हो गई? देखिए आर की वैल्यू डिक्रीज हो गई। यहां पर आर की वैल्यू देखो, दिस वाज द वैल्यू ऑफ आर। ये देखिए ये वैल्यू ज्यादा थी, क्यों? क्योंकि आप ऐसे टेढ़े मेढ़े खड़े हुए थे। ये देखिए ये वैल्यू ज्यादा थी। जब आप स्ट्रेट हो गए तो ये वैल्यू कम हो गई। अगर ये वैल्यू कम हो गई बेटा, तो आर का वैल्यू कम, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज हो गई, सिस्टम और स्टेबल हो गया। तो इसीलिए जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हो तो रस्सी हिलना बंद कर देती है, राइट। वेरी गुड क्वेश्चन। Soumya took two right circular cones of same vertical heights, okay, same vertical heights means h is same. One of the two cones is solid while the other is hollow, right, एक आपका solid है और एक आपका hollow है। तो एक का h/4 हो जाएगा, एक का h/3 हो जाएगा। यही होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। By measuring the cross sectional area, he found that the difference is 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर डिफरेंस 1.5 है तो h/3 minus h/4 is 1.5, this is 12, तो h/12 is 1.5, h आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, राइट। ध्यान रखेंगे ये बात। आपका जो सॉलिड कोन है, दिस इज फॉर सॉलिड कोन, याद रखिएगा। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो काउंसिल ने दिए उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस हैं, तो प्रिपेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अकॉर्डिंगली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ये बेस से है बेटा, दिस डेटा इज फ्रॉम बेस। विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो स्फीयर फिल्ड हाफ विद मरकरी एंड हाफ विद ऑयल बी आइडेंटिकल टू दैट? नो। अभी मैंने आपको बताया मास डिस्ट्रीब्यूशन, जब बॉडी के अंदर मास है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द मास, यस और नो। चलो मैं इसको तुम्हें एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको याद आ जाएगा। आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, व्हेन जब आप किसी शिप को भेजते हो, राइट, जब आप किसी शिप को भेजते हो और वो शिप एम्प्टी है, कार्गो शिप, तो आप क्या करते हो, उसके बेस पर बहुत सारा वेट पुट ऑन कर देते हो। यू पुट ब्रिक्स, सीमेंट, मड एट द बेस ऑफ द शिप, राइट। ये एक एग्जांपल, क्यों? ताकि बेस का वेट बढ़ जाए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे शिफ्ट होगा, बॉडी उतनी स्टेबल होगी,
राइट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझाऊं, इट्स अ वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल। आप लोगों ने एक नॉर्मल लेडी को के चलने का तरीका देखो एंड ऑब्जर्व द वे व्हेन अ लेडी वॉक्स व्हेन शी इज प्रेग्नेंट। तो जब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका पैर हल्का सा स्ट्रेच होता है, जस्ट नोटिस इट। आप कोई क्लिप देख लेना, दे मूव। या जो मोटे लोग होते हैं, जैसे मेरी तरह जो मोटे लोग हैं, अगर आप उनको ऐसे ऐसे चलते हैं, वी वॉक लाइक दिस, क्यों भाई? ये मैं हूं, ये मेरा पेट है। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा है, अगर मैं अपने पैर फैलाऊंगा नहीं तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये मेरे बेस से पास ही नहीं होगा, तो मैं गिर जाऊंगा। तो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो जो अपने पैर ऐसे से हल्के से वाइड करके चलती है, वो नेचुरल है, अपने आप ही वाइड हो जाते हैं। उससे क्या होता है, बेस बढ़ जाता है। जब बेस बढ़ जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से पास होने लगता है। वही क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, राइट। तो जब आप वेट करते हो, कहीं पर वेट पुट ऑन करते हो, कहीं पर वेट इंक्रीज करते हो, तो स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ शिफ्ट होने लगता है। यहां पर आपसे बोल रहा है कि एक बार तो हॉलो है, एक बार फिल्ड है, तो ऑब्वियसली जब फिल्ड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ शिफ्ट होगा ही होगा, राइट। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट। In a gold atom, atomic number 79, an electron revolves around the nucleus in a circular orbit. Okay, मतलब ये क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यू रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं बाहर से नहीं आता, कभी नहीं आता। सिस्टम का ही कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगता है और बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। आप लोगों ने बोर्स थ्योरी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बोर्स मॉडल। ये बोर्स मॉडल पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास एक न्यूक्लियस है Ze और ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता है। ओके, तो पहला पार्ट कह रहा है नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियसली इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से आ रहा है? ये आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये इस वाले फोर्स से आ रहा है। कभी भी अलग से सेंट्रीपिटल फोर्स हम नहीं लगाते बेटा, सिस्टम का ही कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगता है। इन द एब्सेंस ऑफ सच फोर्स what will happen to the movement of electron? No circular motion is possible विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बेटा मूव नहीं कर सकता, राइट। अ मेटल रॉड इज हाफ कॉपर एंड हाफ आयरन। चलो एक मेटल रॉड बनाते हैं, हाफ इज कॉपर, ओके, हाफ इज आयरन। इफ द मास ऑफ द कॉपर पार्ट इज 900 ग्राम, तो कॉपर पार्ट का मास कहां एक्ट करेगा? रिमेनिंग पार्ट के मिडिल पे। इसका भी एक्ट करेगा रिमेनिंग पार्ट के मिडिल पे। भाई मीटर रॉड है तो ये वाला जो लेंथ है ये तो 1 मीटर हो गया, राइट। लेकिन आधी कॉपर की है आधी आयरन की, तो कॉपर कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। आयरन कितना हो गया? ये भी 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना बेटा। और वेट कहां लाई करेगा? वेट इस 50 सेंटीमीटर के मिडिल वाले पोर्शन पे लाई करेगा। ओके, आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन एट विच द रॉड कैन बी बैलेंस्ड। मान लो रॉड को हम यहां से x पे बैलेंस कर रहे हैं। अगर यहां से x पे बैलेंस कर रहे हैं तो भाई दिस इज 25, दिस इज 25, सो दिस इज 50। अगर एक तरफ से x है तो एक तरफ से इट हैज टू बी 50 माइनस एक्स, इजंट इट? तो क्या करना चाहिए? 900 इंटू एक्स इज इक्वल टू 800 इंटू 50 माइनस एक्स, राइट। एक्स की अपने अपने एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। 9x इज इक्वल टू 8 5 40 माइनस 8x, 17x इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू 400 बाई 17। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट वन। On a trek to something something halted at a tea house in Tumbling. The picture above shows the entrance door of the tea house. They saw the tumbler filled with water hanging from the top rigid support. Okay, यहाँ से एक tumbler hang कर रहा है, ये
Okay. On inquiring about the tumbler, the owner of the tea house, he said that it acts as a pullback door closure. अच्छा, इसको दरवाजा बंद करने के लिए यूज कर रहे हैं. Explain how the tumbler helps to close the door on its own. Very simple. ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे कर लो. ये मान लीजिए दरवाजा है, ठीक. यहां से एक टम्बलर हैंग कर रहा है. सेम डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग दिखा रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर क्लैरिटी, राइट. अब हुआ क्या, ये वो एक्सिस है, ये वो रिजिड सपोर्ट है, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये वो एक्सिस हो गई, ठीक. और ये हो गया टम्बलर का वेट. क्या टम्बलर का वेट उसी एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है जिस एक्सिस पर आपने टम्बलर को हैंग कर रखा है. तो अगर दरवाजा बंद है तो क्या ये टम्बलर कोई मोमेंट क्रिएट कर पाएगा? ना, नहीं कर पाएगा, ठीक. अब सोचो आपने दरवाजा खोल दिया. जब आपने दरवाजा खोल दिया तो आप जब दरवाजा खोलोगे तो टम्बलर अपनी पोजीशन से चेंज होगा. अगर टम्बलर अपनी पोजीशन से चेंज हो गया बेटा, तो क्या टम्बलर का सेंटर ऑफ मास यहां से पास करेगा? अगर टम्बलर का सेंटर ऑफ मास यहां से पास करेगा तो क्या अब सेंटर ऑफ मास और एक्सिस के बीच में एक डिस्टेंस आ गया? और अगर डिस्टेंस आ गया तो टॉर्क एक्ट करने लगेगा. टॉर्क एक्ट करने की वजह से दरवाजा रोटेट होके वापस बंद हो जाएगा. ओके. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. नेम द प्रिंसिपल यूज्ड. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या टॉर्क. You can simply say the principle of torque या principle of moment. Pavel took an earthen pot which was filled with water up to its brim. The earthen pot was conical in shape and kept with its apex downward. अच्छा, एक बात बताओ, जब इस पॉट में वाटर भरा है उस समय ये सॉलिड है, और जब वाटर एम्प्टी है उस समय ये हॉलो है, ठीक. If the vertical height of the earthen pot is 12 centimeter, where does its center of gravity lie? If it is a solid one, then the center of gravity will be at h by 4. कहां से? From the base. What is the base? This is the base. What is the top? This is the top. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा बेटा? 12 by 4. That is 3 centimeter from the base या 3 centimeter from the top end. ओके. यहां पर उल्टा रखा हुआ है, तो आपको जो आंसर फ्रेम करने होंगे वो उल्टे फ्रेम करने होंगे. लॉजिक सेम ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, राइट. सेकंड में क्या बोल रहा है? पवेल poured out all the water from the pot. अगर पानी खाली कर दोगे तो ये हॉलो बन जाएगा. अगर हॉलो बन जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले किस पे था? h by 4 पे था. अब किस पे आ जाएगा? h by 3 पे. अब इसको ऐसे समझो, h by 4 का मतलब हो गया 12 by 4. इसका मतलब 3 सेंटीमीटर. कहां से? बेस से. जब खाली हो गया तब हो गया h by 3 यानी कि 12 by 3 यानी कि 4 सेंटीमीटर. कहां से? बेस से, ठीक है. तो पहले 3 सेंटीमीटर था बेस से, अब कहां है? अब 4 सेंटीमीटर है बेस से. बात समझ में आ गया, राइट. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बेस से 4 सेंटीमीटर है तो क्या it will shift towards apex? Obviously yes, it will shift towards apex, क्योंकि उल्टा रखा हुआ है. apex तो ये है, ठीक, राइट. अब Pavel wanted to grow a plant in the given pot, so he filled completely again. तो जब वापस से आप उसमें पानी डाल दोगे तो हॉलो फिर से सॉलिड बन जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से ऊपर की तरफ राइज करने लगेगा. इट विल अगेन बी एट प्रीवियस पोजिशन. यस, बात समझ में आ गई? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. Last question for the day. A roller with a diameter, I'm sorry, 0.2 meter is raised over a pavement. देखिए ये आपका एक्सेस हो गया, यहाँ पर रेस कर रहा है. एक बार फोर्स F1 से, एक बार फोर्स F2 से. F1 इज इक्वल टू F2 आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन. and compare the magnitudes of the torque. So what will be tau 1? Tau 1 will be F1 into
ये वाला डिस्टेंस इज बेसिकली डायमीटर, तो 0.2. व्हाट इज टाउ टू? टाउ टू इज f2 इंटू ये वाला डिस्टेंस, दिस इज रेडियस, दैट इज 0.1. तो टाउ 1 अपॉन टाउ 2 इज 2/1. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, सब्सक्राइब कर लो. अगर आप फॉलो कर रहे हो तो स्टे कनेक्टेड. दिस इज द सेकेंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड सेशन. अगर आपने पुराना सेशन नहीं देखा, इट्स ऑलरेडी लाइव and it is based on modern physics. Next we'll be taking up the second chapter and we'll be continuing this till your board exams. पहले हम MCQs करेंगे and then we'll have separate competency based numerical sessions. So अगर आप ICSE board के student हो and you are appearing for your board exams in 2025, this is the right place for you. Please support the channel, encourage us so that we can come up with more exciting videos. Thank you very much and all the very best for your board exams. Take care.